إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج عید قرباں کا دن ہے، خوشی و مسرت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہے، اور یہ عید ہمارے لیے خوشی کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. ہماری عیدوں کی کچھ خصوصیات ہیں. ہم جو جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہیں. ان میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو خوشی و مسرت کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے قوم کا دستور ہے یا ہمارے ملک کا کوئی قانون ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم پر ہم خوشی و مسرت کرتے ہیں. ہم بطور عبادت خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے. یہ عبادت کے طور پر ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جلتے ہیں. اسی طرح سے اس عید کی جو عیدیں ہماری ہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اس عید کی ہماری بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ ہماری عیدوں میں کوئی فحش کاری، کوئی بے حیائی، کوئی بدماشی، کوئی شرارت، کوئی قسم کے شراب نوشی یا اور دیگر جو فحش اور بے حیائیاں دوسری قوموں کے عیدوں میں پائی جاتی ہے، الحمدللہ مسلمانوں کی جو دونوں عیدیں ہیں ان تمام سب چیزوں سے پاک اور صاف ہیں. اسی طرح سے ہمارے عید کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہم کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے. ہم مسلمان ہیں، ہم بحیثیت کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. نہ ہماری عیدوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس میں ناچ ہیں، نہ اس میں گانے ہیں، نہ اس میں ڈی جے ہیں، نہ اس میں اور کوئی چیز ہے. قطعاً کچھ بھی نہیں. نہ کہیں رقص ہے، نہ کہیں سرود ہے، نہ روڈوں کے اوپر کوئی جشن ہے، نہ کوئی کچھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی تکبیر بیان ہوتی ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مسلمان اپنی زبانوں سے اس خالق و مولا کی تعریف کرتا ہے جس نے اسے زمین عطا فرمائی، جس نے اسے آسمانوں کا چھت نصیب فرمایا، جس نے اسے پیدا فرمایا، جس نے اس کو صحت اور عافیت تندرستی دی، جس نے یہ پوری دنیا عطا فرمائی. یہ نعمتیں ہی نعمتیں جس نے عطا کی، اس نعمت کی تکبیر اور بڑائی بلند کرتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اسی طرح سے ہماری عیدوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ہماری عیدوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کا نام عطا فرمایا. ہوا سماکم المسلمین. ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے. اور کیوں مسلمان بنایا؟ ہمیں مومن کا خطاب عطا فرمایا. کیوں مومن کا خطاب عطا فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام جیسی جو نعمت ہے، اسلام سے ہمیں مسلمان بنایا. اس کے اندر امن ہے. ہماری عیدوں کے اندر امن پایا جاتا ہے، شانتی پائی جاتی ہے، رحمت پائی جاتی ہے، رافت پائی جاتی ہے، شفقت اور محبت اور پیار پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں اپنی طرف، اپنے دین کی طرف منسوب ہونے کو مسلمان قرار دیا. مسلمان کون ہے؟ یہی عید کا دن تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی وادی میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: اے لوگو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں من المؤمن، مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: من امن الناس، وہ مومن وہ شخص ہے جس سے لوگ، جس کی زبان سے،
लोगों की माल, लोगों की दौलत, लोगों की जान महफूज हो, वो आदमी मोमिन कहलाता है। यानी कायनात में मोमिन वो शख्स है जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान वो है मन सलिमन नासु मिन यदिही व लिसानिही, लोग जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से महफूज रहें वो मुसलमान हैं। तो ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और मोमिन होने की हकीकत बयान फरमाई कि मोमिन जहाँ कहीं भी रहता है वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, अपने पड़ोसी के, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। मुसलमान कहीं भी रहता है वो बिल्कुल लोग उससे महफूज रहते हैं, बल्कि खुश होते हैं कि हम किसी मुसलमान के पड़ोसी बने, हम किसी मुसलमान के साथ रहें, ताकि उसको अपनी जान की भी फिक्र नहीं होती, माल की भी फिक्र नहीं होती, उसकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की भी फिक्र नहीं होती। ये है मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान। हमें अल्लाह ने इसी तरह मुसलमान बनने का हुक्म दिया है। इसी तरह से हमारे ईदों की खुसूसियतों में एक खुसूसियत ये भी है कि हमें अपनी ईदों की नमाज़ों से हमें अपनी आखिरत याद आती है कि जिस तरह से क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में सारे जमा होंगे, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब जमा होंगे। बिल्कुल ईद का यही मंजर, जहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, माजूर भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। बस फ़र्क यह है कि वो मैदान जो होगा और इस मैदान में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि आप इस मैदान से वापस चले जाएंगे तो आप अपने घर लौटेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ लौटेंगे, घर जाएंगे। लेकिन वो मैदान महशर से जब आपको लौटाया जाएगा तो सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता होगा और या तो दोज़ख की तरफ जाने वाला रास्ता होगा। मेरे अजीज़ों, और दूसरा फ़र्क यह है कि अगर तसव्वुर करो, ज़रा सोचो कि अगर यही मैदान महशर हो तो क्या होगा। यहाँ से तो लौट कर जाकर अपनी गलतियों की आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो मैदान महशर लौटने के बाद वहाँ गलतियों की इस्लाह नहीं हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ से लौटते वक्त हम ये तसव्वुर करें कि हम मैदान महशर से लौट रहे हैं, अब जो कुछ भी गलतियां हुई उस गलतियों से तौबा कर लें। यह है तसव्वुर इसका। इसी तरह से हमारे ईद की खुसूसियतों में से एक खुसूसियत यह है कि हमारी ये ईद उल अज़हा किसी के किरदार से, किसी की अज़मतों से जुड़ी हुई है, और वो किरदार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार है। वो किरदार जिसने, तसव्वुर कीजिए आप, जिसने अपने घर को छोड़ कुर्बानी दी, अपने माँ बाप की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने बीवी की कुर्बानी दी, अपने वतन की कुर्बानी दी, अपने बस्ती की कुर्बानी दी। किसकी वजह से कुर्बानी दी पता है? सिर्फ अक़ीदे तौहीद की सलामती की वजह से। ला इलाहा इल्लल्लाह की सलामती के लिए, अक़ीदे तौहीद के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से कहाँ इब्तिला और आजमाइश में न गुजारे गए, आग में डाले गए। आपने अपने बाप ने घर से बाहर निकाला, सब कुछ कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि आज का वो दिन था मिना के मैदान में अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी तो हज़रत सैयदना इब्राहीम ने आज ही के दिन मैदान मिना में अपने बेटे की गर्दन पर छुरी भी चला दी। ये अज़मत हमें बतलाती है, ये ईद हमें दर्स देती है कि ऐ दुनिया के लोगों, क़यामत की सुबह तक अगर तुम्हें जीना है तो मिल्लत इब्राहीमी पे जियो। तुम्हारे दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए अगर तुम्हें अपनी जानों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो तुम कभी भी दरेग न करो, बल्कि अपनी जानों से भी गुजर जाओ, अपने मालों से भी गुजर जाओ, अपनी आल औलाद से भी गुजर जाओ, पर अल्लाह के दीन की सरबलंदी, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए तुम्हें कोई चीज़ रुकावट न बने। ये ईद का हमें दर्स है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अगर हम यहाँ से लौटे और हमने अपने अक़ीदों की इस्लाह न की, सिर्फ हमने गर्दनों के ऊपर बकरों के, जानवरों के हमने छुरियाँ फेरी, लेकिन सैयदना इब्राहीम का यह दर्स नहीं लिया, अपने अक़ीदे की इस्लाह नहीं की, तो यकीन मानो इस रस्मी तौर पर बकरे या जानवर को ज़बह करने का कोई फ़ायदा और कोई भी मकसद नहीं है। मकसद यह है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक़ूश की पाबंदी करते हुए हम अमल करें। इसी तरह से हमारी माएँ, बहनें, औरतें भी ईद के दिन आती हैं, उनके लिए भी एक दो नसीहतें ये हैं कि आम तौर पर वो हर महफिल के तकाज़े पूरे करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन जब कुर्बानी का दिन मौसम आता है, कुर्बानी के मौसमों में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, सारे लोग बिल्कुल वो जानते ही नहीं कि कुर्बानी क्या होती है। वो ये सोचते हैं कि बस घर वाले ने कुर्बानी कर दी और घर वाले ने कुर्बानी कर दी और कुर्बानी हो गई। नहीं, बल्कि आप देखिए सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना किस कदर गुर्बत और अफलास का घराना था कि हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं कि एक दफ़ा मैं नबी के काशाने नबूवत पे हाजिर हुआ, देखा कि अल्लाह के नबी खजूर की बनी हुई चटाइयों के ऊपर और एक घड़ा मशकेदा पानी रखा हुआ आराम कर रहे हैं। मुझे देखा तो आप उठ के बैठ गए, आपके पुश्ते मुबारक, नंगी पीठ थी,
खजूरों के धब्बे पड़े हुए थे, दाग पड़े हुए थे। फबतदरत अयनाहा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क़ाल मा युबकीका या इब्न अल-खत्ताब, नबी ने फरमाया इब्न खत्ताब, खत्ताब के बेटे क्यों रो रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा के बादशाह हीरे और जवाहरों के ऊपर सो रहे हैं और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप हैं कि आप खजूर की चटाइयों पर लेटे हुए एक मशकीदा पानी, हमें तकलीफ हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया से हमको क्या लेना है, ये दुनिया है एक न एक दिन फना हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का यह आलम था, लेकिन जब ये इबादतों का मौसम आता था, जब कुर्बानियों का मौसम आता था, जब अल्लाह के लिए खर्च करने का मौसम आता था, तो नबी कायनात एक जानवर अपने पूरी खानदान अपने फैमिली की तरफ से करते थे, और खुद आपकी फैमिली सैयदा आयशा हो या सैयदा फातिमा हो और दीगर जितनी भी थी अज़वाज मुतहरात, सब अपनी अपनी तरफ से, सहाबियात भी अपनी अपनी तरफ से कुर्बानियाँ करवाती थी। आज हम ये दर्स भी भूल गए, इसलिए मैं दर्स देना चाहता हूँ कि मेरी माओ बहनों बेटियों से भी कि तुम भी अपने पैसे जमा करके अपनी तरफ से कुर्बानियाँ करवाओ अल्लाह की राह में, और खुद अजर कायम करो, खुद अजर हासिल करो, नेकियाँ हासिल करो। इसी तरह से आज के दिन सदका और खैरात करने का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें इसमें भी पीछे रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों सदका खैरात किया करो, क्योंकि तुम्हारे नाकिस अमाल की वजह से मैंने तुम्हें जहन्नम में ज़्यादा देखा है, शौहरों की नाशुक्री की वजह से तुम्हें हमने जहन्नम में ज़्यादा देखा है, इसलिए सदका और खैरात करो। सदका और खैरात कर करके तुम अल्लाह की खुशी हासिल कर सकते हो। अलमुहिम आज का दिन खुशियों का दिन है, लोगों जानवर ज़बह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 4 दिन जो कुर्बानी के हैं, आज यौमुन नहर है 10वीं तारीख, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 की असर तक कुर्बानी करना हमारे लिए ये हमारे लिए हलाल किया गया है कि हम, और इन दिनों के अंदर जानवर की कुर्बानी करने से बेहतर कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहीं है। इसलिए बखीली न करो, इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आलम इस्लाम में ये आई हुई वबा और बीमारियों को अल्लाह दूर फरमाए। तमाम इस्लामी ममालिक की अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जहाँ कहीं मुसलमानों की बस्तियाँ, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और कायनात में तमाम लोगों को अल्लाह खुश रखे, अमन और सलामती के साथ रखे, और दुनिया को हिर्स मुसीबत से अल्लाह ताला निजात फरमाए। और जो इंतकाल कर गए अल्लाह उन्हें करबत कबल जन्नत नसीब फरमाए। हमारे माँ बाप की और हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हमारे बीवी बच्चों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। ममलकत तौहीद सऊदी अरबिया की अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जो लोग रहते और बसते हैं, जो इसके उलाते उमूर हैं, जिम्मेदार हैं, अल्लाह उन सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, मोमिन मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।